dear students, myself Shivani Gupta and I am here to teach you all mathematics. In this video, we are going to discuss how to solve the system of linear equations using matrices. So these are m equations in n unknowns. These x1 to xn are the unknowns and we have to solve this system of linear equations. Here all these ai's are the aij's are constant. This bi's are also constant. And we have to find out the value of these x1, x2 and xn. So first of all, we write this in the form of a matrix. So this is the matrix form of this equation. This is called the coefficient matrix. This is a vector and this is also a m cross 1 vector. So this is an m cross n matrix and this is a n cross 1 matrix. So when you multiply, you will get a m cross 1 vector. Okay? So this is called the coefficient matrix and we denote this by A. And if we write this like this, that means if we add this B column also in this matrix, so this is this A matrix. Now if we add this B column also in this matrix, then this matrix is called the augmented matrix. And we denote this matrix by C. So this is the coefficient matrix. If you add this B column here, then this will become the augmented matrix. Okay? So in notation, we write this equation like this: Ax equals to B. This is the coefficient matrix. This denote the x vector and this is the B vector. So this is called the matrix form. So in this matrix form, if this B is equals to 0, that means if the equation are in the form of Ax equals to 0, then they are called the homogeneous equation. So if B is equals to 0, then the equation are called homogeneous, and if B is not equals to 0, then the equations are called non-homogeneous equation. Okay? Now what is our task? We have to find out those values of xi which satisfied the given linear equations. Okay? So based on the number of solutions possible for the system of equations, we can characterize the solution as follow. So the given system of equations can be characterized into two categories. First one is the consistent and second one is the inconsistent. So if the given system of equations have one or more solutions, then the system of equations are called consistent. And if the system of equations have no solution, then they are called the inconsistent. Now in this consistent, there are also two conditions. Either the system of equation has a unique solution or the system of equation has infinitely many solution. Okay? Now we see we see the various methods to solve the given system of equation. So first of all, we discuss about the Cramer's rule. So the Cramer's rule is to solve the non-homogeneous type of equation, that is that Ax equals to B where B is not equals to 0, and here also m is equals to n, that is the number of given equation is equals to the number of unknown. So the first and the most important condition of applying the Cramer's rule is that the determinant of this A matrix should not be equals to 0. If the determinant of this A becomes 0, then Cramer's rule is not applicable. So the most important condition is that determinant of A should always be non-zero. So if the determinant of A is non-zero, then we can find out the solution by using this formula. X2 upon determinant of A2 where this is the determinant of matrix A and this determinant of AI is obtained by replacing the ith column by BI. That means let's say if अगर आपका जो ये डिटर्मिनेंट A वाली जो मैट्रिक्स है अगर वो इस तरीके से है,
लेट्स से ये हमारी मैट्रिक्स है, और अगर लेट्स से मुझे ये A2 फाइंड आउट करना है, A2 का डिटर्मिनेंट, तो व्हाट आई हैव टू डू कि जो मेरा ये सेकंड कॉलम है, जो ये सेकंड कॉलम है उसको मैं अपने बी आईज वाले से रिप्लेस कर दूंगी, यानी जो आपको राइट हैंड साइड में जो बी आईज दिए होते हैं, तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स, एंड ऑल्सो हेयर M इज इक्वल्स टू N, तो ये ANN ही आएगा यहाँ पे, AN2 AN1, ये भी होगा आपका BN, बाकी पूरी मैट्रिक्स सेम रहेगी। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आपका A2 बन जाएगा। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल हाउ वी सॉल्व दिस बाय Cramer's rule. So here we have to find out the value of x, y, z by using the Cramer's rule. So first of all we write it in matrix form. ठीक है, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस विल बिकम, पहले आप इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाओगे, तो ये जाएगा 1 1 1 1 -1 1 एंड 2 1 एंड -1, तो ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। देन ये आपका अननोन वाला वेक्टर हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ये कोफिशिएंट आएंगे 6 2 1। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। सो क्रैमर्स रूल चेक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है, सिंपल, सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। लेट्स से मैं इस कॉलम की करस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ, 1 की करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 -1, फिर ये 1 है तो ये जाएगा माइनस का 1 हो जाता है सेकंड वाला, ये कॉलम हाइट रो हाइट क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, -1 इंटू -1 और +2, तो ये हो जाएगा 1 और ये +1। ठीक है, तो दिस विल बिकम 0, -2 इंटू -1 +2 और 1/2 +2 इंटू 2 4, तो ये आ गया आपका 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो वी कैन इजिली अप्लाई द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। ठीक है, AX मतलब जो है मैं x वाले की करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसकी जगह मैं ये वाला कॉलम रखूंगी, y में जो y के करस्पॉन्डिंग जो ये कॉलम है सेकंड कॉलम, उसकी जगह मैं ये वाले एलिमेंट्स रखूंगी, और AZ में मैं z वाले की करस्पॉन्डिंग ये वाले एलिमेंट्स रख के डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, AX AY एंड AZ। ठीक है, तो सबसे पहले हम AX फाइंड आउट करते हैं। सो AX के लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम को 6 2 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, इससे रिप्लेस कर दिया, बाकी एलिमेंट सारे ऐसे ही। ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर सकते हो। इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, AY में आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस करोगे 6 2 1 से, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा, बाकी मैट्रिक्स सेम वैसी रहेगी। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका आंसर आएगा 12। AZ में आपको थर्ड कॉलम रिप्लेस करना होगा, तो थर्ड कॉलम की जगह 6 2 1 रखेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, तो दिस विल बिकम x/6 इज इक्वल्स टू y/12 इज इक्वल्स टू z/18 इज इक्वल्स टू 1/6, ये हमने पहले निकाला था। ठीक है, सिंपल, आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो x विल बी इक्वल्स टू 6/6 दैट मीन्स 1, y will be equals to 12/6 that means 2, and z is equals to 18/6 that means 3. तो x y z की वैल्यू आ गई 1 2 3. So in this way you can solve the given system of equation using the Cramer's rule. सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करोगे कि वो 0 तो नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हम क्रैमर्स रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, जितने भी आपको अननोन्स सी होंगे उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन सब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल के आप उसमें रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग कि क्रैमर्स रूल से वी आर एबल टू फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल आप जब भी लगाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द इनवर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
So this method is also for the non-homogeneous type of equation, that is b should not be equal to 0. And here also the determinant of a is also non-zero. So if the determinant of a is 0, then we cannot apply this method. So what we do in this method, this is a given system of equation. Let us pre-multiply this by a inverse. So आप a inverse से pre-multiply करा रहे हो, ठीक है. यहाँ पे आपको पता है कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो हम ये ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं. तो इस a इनवर्स ए एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है. तो ये a इनवर्स इंटू ए आपका आइडेंटिटी हो जाएगा. तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b. तो आपको सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया होगा, आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है. उसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे, नॉन जीरो आना चाहिए. उसके बाद आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करोगे और उसके बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आपका एक्स वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है. सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. So we have to solve this system of linear equation by inverse method. So first of all we construct that coefficient matrix A. तो A मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 2 3 3 1 2 एंड 2 3 1, ठीक है. और यहाँ पे आपका B वेक्टर क्या है, 14 11 एंड 11. So first of all what we have to check कि whether this A matrix is singular or non singular. That means इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि कहीं जीरो तो नहीं है. तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, सिंपल मेथड. इस फर्स्ट कॉलम की करस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका रो का हाइट कॉलम हाइट 1 माइनस 6, ये माइनस का 3 आएगा. दिस विल बिकम 2 माइनस 9, और ये प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग आप करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3. तो दिस इज माइनस 5, दिस इज माइनस 7 इंटू माइनस 3 विल बिकम प्लस 21, एंड दिस 4 माइनस 3 1 into 2, this will become 2. तो the answer will be 18 which is not equals to 0. so आप inverse method easily apply कर सकते हो, ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला हमने जो पीछे देखा था वो क्या निकल कर आया था, x is equals to a inverse b. सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स, ठीक है. इनवर्स आप लोग को आता होगा फाइंड आउट करना, और अगर आपको इनकेस नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो डाला है कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड. तो यहाँ पे हम एडजॉइंट मेथड से ही करेंगे. तो अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो मैं आपको बता दूँ इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है. तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी होती है, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनती है मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देती हूँ. जैसे मुझे ए के लिए बनानी है, तो अगर मुझे इसके फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चाहिए, तो आप इसकी कॉलम हाइड कर लो, रो हाइड कर लो, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जो 4 एलिमेंट बचते हैं. तो हो जाएगा 1 माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 5. फिर मुझे इस 2 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, अगेन आप इसकी रो हाइड कराओगे, कॉलम हाइड कराओगे, जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि माइनस 1. फिर अगर आप 3 की करस्पॉन्डिंग करोगे तो ये अगेन रो हाइड कॉलम हाइड हो जाएगा 9 माइनस 2, यानी कि 7. फिर मैं 3 के करस्पॉन्डिंग कर रही हूँ, ये कॉलम हाइड रो हाइड, तो हो जाएगा 2 माइनस 9, यानी कि माइनस 7. 1 के लिए करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 6, यानी कि माइनस का 5. 2 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि माइनस 1. आप इसके लिए करोगे हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि 1. 3 के लिए करेंगे तो 2 माइनस 9, दैट मीन्स माइनस 7. एंड अगेन आप इसके लिए करोगे 1 के लिए, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 6, यानी कि माइनस का 5, ठीक है. अब इसमें हमें साइन देखने होते हैं. साइन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बीच में एक डायमंड बनाते हैं, ठीक है. तो डायमंड बनाते हैं, तो जो जो इस डायमंड के कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है. तो ये 1 का साइन माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का 7, ये प्लस का 7, और ये प्लस का 1. बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही रहते हैं, ठीक है. फिर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बिकम द फर्स्ट कॉलम. ये हो जाएगा -5 1 और 7.
This row also become the second column and third row become the third column. So this is the adjoint of A. ठीक है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1 by determinant of A is 18 and this is the adjoint minus 5 7 1 1 minus 5 7 1 sorry 7 1 and minus 5. ठीक है, सो दिस इज द इनवर्स. अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है. एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करानी है बी से. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू है ए इनवर्स बी. तो ए इनवर्स है 1 by 18 और आपका बी वेक्टर है 14 11 और 11. ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कराओगे. ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप लोग चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके. दिस इज अ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे आपको मिलेगा 18 36 एंड 54. ठीक है, तो इसको आप 18 से डिवाइड कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 एंड 3. ठीक है, दिस ये आपका एक्स वेक्टर आएगा तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई 3. सो दिस इज द आंसर. तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स बनानी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका एडजॉइंट निकालना है. उसके बाद हमें ए इनवर्स मिल जाएगा और सिंपल ए इनवर्स ऑफ बी की मल्टीप्लाई करा देनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये जो आपने मेथड देखा प्लस जो हमने पीछे मेथड देखा था क्रैमर्स लॉ, दोनों जो थे वो नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन के लिए थे. एंड वेयर m इज इक्वल्स टू n, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन इक्वेशन. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस के लिए थे. अब हम एक जनरल मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से आप जो हो अगर m इज नॉट इक्वल्स टू n तब भी आप इसकी जो है वैल्यूज एक्स वाई जेड की फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड द रैंक मेथड. और उसके लिए हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं सबसे पहले. सो व्हाट वी डू इन द रैंक मेथड, वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ टू मैट्रिक्स. वन इज रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी. हियर सी इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. जो आप ए मैट्रिक्स में बी वाला कॉलम भी ऐड कर देते हो तो जो मैट्रिक्स मिलती है. ठीक है, तो इन दोनों के जो है मैट्रिक्स की रैंक के हिसाब से हम कैसे सॉल्यूशन को हम जज करते हैं. सो पहला है कि अगर आपकी दिस रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी. ठीक है, अगर दोनों की रैंक आपकी इक्वल नहीं आती है तो दैट मीन्स दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. कैसी है, इनकंसिस्टेंट है. दैट मीन्स उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि अगर ये जो रैंक ऑफ ए है इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी एंड इज इक्वल्स टू एन. एन मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स जितने दिए हुए हैं. अगर ये वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है और आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी है बट इज लेस देन एन, एन से कुछ कम वैल्यू आ रही है, तब भी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बट दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि रैंक ए और सी का रैंक देखना है. अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन. इक्वल है और जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उसके बराबर है तो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन. सॉरी, और अगर जो है नंबर ऑफ गिवन अननोन से कम आती है रैंक, इक्वल है दोनों की बट एन से अगर कम है तो दैट मीन्स कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो दिस इज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी विद द हेल्प ऑफ दिस रैंक मेथड. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स क्या बनेगी, ठीक है, ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई.
यहाँ पे अननोन्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड एंड टी, और ये मेरा बी हो गया 4 2 0 एंड -2। ठीक है, तो रैंक हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, हम जो है, मैंने अपने चैनल पे रैंक फाइंड आउट करने के लिए भी 2 वीडियोस अपलोड करे हैं। सो अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है या आपको नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली बता देती हूँ कि हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स में जीरो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिकली जितनी नॉन जीरो रोज होती है मैट्रिक्स में वही उसकी रैंक होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे हम जितने मैक्सिमम जीरो बना सकें। ठीक है, तो हमें कुछ रो ऑपरेशंस लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आई एम रिप्लेसिंग R2 बाय R2 माइनस R1, R3 बाय R3 माइनस R1 एंड R4 बाय R4 माइनस R1। तो R1 को सबसे माइनस करा देना है, तो फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी। सेकेंड रो में फर्स्ट माइनस कराना है, तो 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0 एंड -1, और -1 हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब मैं R3 माइनस R1 कराऊंगी, तो 1 -1 0, -1 हो जाएगा -2, 1 -1 0 और -1 विल बी -2। ठीक है, अब मैं इससे माइनस कराऊंगी, तो 1 -1 0, -1 विल बी -2, -1 -2 एंड -1 विल बी -2। ठीक है, यही सेम रो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2, 0 - 4 -4, -2 और -4 यानी कि -6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब जगह -2 है, तो इसको हटाने के लिए मैं R2 को रिप्लेस कर दूंगी -1/2 इंटू R2 से, यानी -1/2 से मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगी। सिंपली R3 को रिप्लेस कर देंगे -1/2 इंटू R3 से, और R4 को भी रिप्लेस कर देंगे -1/2 इंटू R4 से। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट रो सेम आपकी वैसी रहेगी। ठीक है, सेकंड क्या आप करा दोगे, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ ये आपका बचेगा 0 1 0 1, और ये हो जाएगा 0 1 1 1। ठीक है, ये सेम वैसी एक्स वाई जेड टी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -1/2 से करा रहे हैं। फर्स्ट तो 4 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखो मुझे जीरो बनाने थे। अब मैं चाहे कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन बना दूं, मैं कोई भी रो को पूरी तरीके से जीरो नहीं बना सकती। ठीक है, अगर मैं मान लो इस R2 को इधर से माइनस भी करा देती हूँ, तब भी मेरा एक ये एलिमेंट रह जाएगा 1 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी 2 1 रह जाएंगे। तो हम कोई भी अब रो ऑपरेशन लगा लें तो हम इसे जीरो नहीं बना सकते किसी भी रो को। तो इसका मतलब इस जो A मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आएगी, 4। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं है, तो इस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी C, उसकी भी रैंक कितनी आएगी, 4, और ये नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 4। तो इसका मतलब ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है, और उसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, मैं इसकी मल्टीप्लाई करके अब इसको वापस इक्वेशन फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है, तो इसकी मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x + y + z + t = 4। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सब जीरो है, सिर्फ t आएगा, t = 1। इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये इक्वेशन बनेगी y + t = 2, और यहाँ से बनेगी y + z + t = 3। ठीक है, तो t = 1 था, यहाँ पे आप 1 रखोगे तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 - 1। y और t को यहाँ 1 1 रखोगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इन सबकी वैल्यू 1 1 यहाँ पे लगाओगे तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका आंसर क्या है, x = y = z = t = 1। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, रो ऑपरेशंस लगा के जितने आप जीरो क्रिएट कर सकते हो उतने करने की कोशिश करो। अगर लेट से यहाँ पे कोई भी एक रो पूरी जीरो हो जाती तो रैंक उसकी n से कम हो जाती। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर सॉल्यूशन बदल जाते, हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते, हो सकता है कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप वापस उसको इक्वेशन फॉर्म में रख के सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो। So let us see a few more examples to get more clarity.
सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपको 3 इक्वेशंस दी हैं, यहाँ पे 2 अननोन ये लैम्डा और म्यू गिवन है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेट फॉर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सच दैट द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो लेट्स सी हम क्या करेंगे. सबसे पहले वी विल राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी ये. सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें रैंक वाला कॉन्सेप्ट लगाना है. ठीक है, जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी का जो हमने अभी पीछे देखा था, तो यहाँ पे ये तो मेरी ए मैट्रिक्स है. ठीक है, दिस इज द ए मैट्रिक्स. और सी मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे, दिस विल बी द सी मैट्रिक्स. तो मैं पहले इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी रो ऑपरेशंस लगा के. तो लेट से मैं इसमें R2 को रिप्लेस कर देती हूँ R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 से. तो दिस सी मैट्रिक्स विल बिकम, फर्स्ट आपका ऐसे ही रहना है. ठीक है, यहाँ चेंज होगा सेकंड में. तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, एंड दिस 10 माइनस 6 विल बी 4. 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, and lambda minus 1, and this will become mu minus 6. ठीक है, अगेन मैं अगर R3 को रिप्लेस कर दूं R3 माइनस R2 से, तो दिस C विल बिकम, जीरो तो ये है ही, 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 1 और माइनस 2 कराओगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, और दिस विल बिकम म्यू माइनस 10. ठीक है, तो ये मेरी सी मैट्रिक्स आ गई. ठीक है, जो इतना पार्ट है मैट्रिक्स का, दिस पार्ट ये ए मैट्रिक्स है, और ये कॉलम ऐड करके ये हमारा सी मैट्रिक्स हो जाता है. ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा था. फर्स्ट हमें पूछा था नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो पीछे जो हमने रिजल्ट देखा था उसमें हमें नो सॉल्यूशन कब मिलता है, इफ द रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी. ठीक है, तो यहाँ पे लेट से अगर मैं ये कंडीशन कह दूं कि लैम्डा की वैल्यू हम रख दें 3. ठीक है, फॉर से, तो अगर लैम्डा 3 हो जाएगा तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये पूरी रो के 0 होने से ये जो ए मैट्रिक्स बनकर आ रही थी, इसमें एक 0 रो हो जाएगी, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी. ठीक है, और अगर हम कह दें कि म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, तो ये 0 नहीं होगी सी वाली रो. ठीक है, तो इसका मतलब जो है सी की रैंक हो जाएगी 3. तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू 3 लेते हो तो यहाँ से आपको ए की रैंक मिलेगी 2. और अगर आप कह देते हो कि म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, तो सी की रैंक हो जाएगी 3. तो ऐसा करने से इन दोनों की रैंक चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो रैंक ऑफ ए नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या कंडीशन रखनी होगी वैल्यूज के लिए, कि लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द वैल्यू फॉर नो सॉल्यूशन. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. नो सॉल्यूशन में हमें क्या करना था, दोनों की रैंक को इक्वल नहीं दिखाना है. ठीक है, इतनी मेरी ए मैट्रिक्स है, अगर मैं ये कॉलम ना कंसीडर करूं, तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देते हो तो ये रो 0 हो जाएगी. तो 0 होने की वजह से यहाँ पे 2 नॉन जीरो रो रह जाएंगी, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2. ठीक है, और इस पूरी सी मैट्रिक्स में अगर मैं म्यू की वैल्यू 10 ना लूँ, 10 के अलावा कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो ये रो 0 नहीं होगी, तो इस सी की रैंक हो जाएगी 3. तो इन वैल्यूज को अगर आप लोगे तो हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन. सेकंड वो क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, कि रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ सी के, और ये इक्वल हो एन के. एन यानी नंबर ऑफ अननोन्स, जो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कितने हैं, 3 हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे तीनों की रैंक 3 बनानी है, सॉरी दोनों की रैंक 3 बनानी है. ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 3 नहीं होगी, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा. तो इसका मतलब रैंक जो है ए की कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और म्यू की वैल्यू आप 10 नहीं लोगे तो सी की रैंक भी हमेशा 3 रहेगी. तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू कभी भी 10 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और थर्ड वो क्या बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो उसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी,
कि ए की रैंक सी की रैंक के बराबर हो बट लेस देन एन हो, यानी कि यहाँ पे 3 से कम आनी चाहिए ये रैंक, ठीक है। तो 3 से कम लाने के लिए क्या होगा, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू ले लूँ 3 और म्यू की वैल्यू ले लूँ 10, ठीक है, तो लैम्डा 3 और म्यू 10 रखते ये पूरी रो 0 हो जाएगी, तो रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ सी भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस टाइप से हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स बना के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। बेसिकली जैसे लास्ट रो में आपके लैम्डा म्यू आ रहे थे तो मैंने इसके बाकी एलिमेंट्स को 0 बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप लैम्डा और म्यू की वैल्यूज के हिसाब से आप अपना रिजल्ट दे सकते हो कि कब नो सॉल्यूशन आएगा, कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो ये तो सारे हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए देखे थे। अब हम एक होमोजीनियस इक्वेशन भी देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व एन होमोजीनियस इक्वेशन। सो ये एक गिवन एग्जांपल है, इसमें आपको ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, बी पार्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो 4 है और जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो 3 है, यानी m इज लेस देन n है, ठीक है। तो लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, तो दिस विल बिकम, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, सॉरी पहले W आएगा, W x y z, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही, हमें रैंक ऑफ ए निकालना है। तो पहले ये जो हमारी ए मैट्रिक्स आई है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें रो ऑपरेशंस लगाऊंगी, तो मैं R2 को रिप्लेस कर रही हूँ R2 माइनस 2R1 से और R3 को रिप्लेस कर रही हूँ R3 माइनस 3R1 से, ठीक है। सिंपल वही हमें जीरोस क्रिएट करने हैं। तो दिस विल बिकम, फर्स्ट रो आपकी वैसी रहनी है, ठीक है। सेकंड रो में से इसकी 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कराओगे, 4 माइनस 4 0, -6 और -6 हो जाएगा -12, -2 और ये प्लस का 2, ये 0 और ये 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कराना है, तो -6, सॉरी इसको आपको प्लस कराना होगा क्योंकि ये माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो -6 और प्लस का 6 ये 0 हो जाएगा, ये 12 और प्लस 3 3 is 9, तो 9 + 12 हो जाएगा आपका 21, 3 और ये हो जाएगा -9, सॉरी -3 आपका हो जाएगा 0 और ये -4 और यहाँ पे आ जाएगा -3, तो ये जाएगा आपका -7, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आई एम रिप्लेसिंग दिस R2 बाय 1/4 R2 एंड R3 बाय 1/7 R3, ठीक है। तो लेट्स सी अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेम वैसी रहेगी, तो ये हो जाएगी आपकी -1 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 0 और -1, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, सॉरी यहाँ पे भी आपका 3 आएगा, आपको 12 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये भी 3 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं इन दोनों को प्लस करा देती हूँ। सो आई रिप्लेस R3 बाय R3 प्लस R2, तो मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो सेम वैसी रहनी है, 0 -3 0 1, सेकेंड भी सेम वैसी। अब इसको आप प्लस कराओगे तो ये तो 0 ही है, ये हो जाएगा 3 और ये -3 का 0, ये 0 ही है और ये -1 और 1 0, ठीक है। तो ये मेरी ए मैट्रिक्स आ गई। अब इस ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 नॉन जीरो रोज है एंड 1 0 रो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 2, ठीक है। और ये जो रैंक है, ये जो नंबर ऑफ अननोन्स दे रखे हैं n से कम है, तो जो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी जो है वो इक्वल आ जाएगी, क्योंकि सी मैट्रिक्स तो है ही, सी कॉलम तो 0 ही ऐड होगा सी मैट्रिक्स में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू n से कम आती है तो हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट होती है हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को इधर रख के और ऐसे इक्वेशंस बनाती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी सिंपल मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये जाएगा 2W
प्लस 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, और इससे क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस का 3x प्लस जेड इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि z इज इक्वल्स टू 3x, एक ये रिलेशन मिल गया, और ये z इक्वल्स टू 3x मैं यहाँ पे रखूंगी फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा 2w इक्वल्स टू y. ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो लेट से हम x को वैल्यू दे देते हैं k1 और w को वैल्यू दे देते हैं k2. तो मुझे क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, अगर x की वैल्यू k1 है तो x की वैल्यू अगर k1 है तो z की वैल्यू हो जाएगी 3k1, और अगर w की वैल्यू k2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2k2. तो यहाँ पे आप k1 और k2 को कोई भी वैल्यू दोगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अगर आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं और m इज इक्वल्स टू n है और a का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, तो आप क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हो और इनवर्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज आप ये सिंपल रैंक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स को रो ऑपरेशंस लगा के सिंप्लीफाई करना है. सिर्फ हमें अपने ए और सी मैट्रिक्स की रैंक के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें याद रखने हैं. अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, इक्वल है n के बराबर है तो यूनिक, और n से कम है तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो सिंपल तरीका है इनको सॉल्व करने का. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.